बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज जाफरान साजिद और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट, वी वर डिस्कसिंग अबाउट बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 6. In our first 5 lectures, we have discussed about construction of Bessel's function from Bessel's differential equation, and then we have discussed recurrence relation of Bessel's function. In our today's lecture, we are going to solve example number 1 based on recurrence relation of Bessel's function. So let's start. Prove that j minus v of x is equal to minus 1 to raise power v j v of x. We have to use Bessel function in order to prove this relation. Okay, let's start. By the definition of Bessel's function, by the definition of Bessel's function, we know that j v of x, this is equal to summation n from 0 to infinity minus 1 to raise power n divided by n factorial gamma function of n plus v plus 1 into x divided by 2 whole power 2n plus v. Similarly, the other Bessel's function is j minus v of x. This is equal to summation n from 0 to infinity minus 1 to raise power n divided by n factorial. You just have to replace plus v with minus v in order to get this second Bessel function. Okay, so gamma function of n minus v plus 1 into x upon 2 whole power 2n plus v, or not plus v, it would be minus v. Okay, it would be minus v. Now student, as we can see that in our example we have j minus v of x, so it means that we have to use this second Bessel function. Okay, we have to use this Bessel function in our example number 1. So let's talk about this Bessel function. As we can see that as j minus v of x is defined only when n minus v plus 1 is equal to and greater than 1. स्टूडेंट, मैं इसकी बात कर रहा हूं। आपके पास ये जो बेसल फंक्शन है, इसके अंदर ये जो गैमा फंक्शन वाली टर्म है n माइनस वी प्लस 1, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो समेशन का इंडिसेस है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपके पास जो टर्म है गैमा फंक्शन के अंदर, अगर ये 1 या 1 से बड़ी होगी तो उस केस में j माइनस वी ऑफ एक्स डिफाइंड होगा। ओके, क्योंकि इस गैमा फंक्शन को आप फैक्टोरियल के साथ रिलेट कर सकते हैं, और जो फैक्टोरियल होता है वो नेगेटिव टर्म के लिए डिफाइंड नहीं होता। इट मीन्स दैट कि आपके पास, हम इस पे कंडीशन लगा रहे हैं कि ये जो n माइनस वी प्लस 1 है, या तो ये 1 होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज j माइनस वी ऑफ एक्स डिफाइंड नहीं होगा। ओके, सो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिख लिया, n माइनस वी प्लस 1 must be equal to 1 or greater than 1. Okay, so now we can see that this one and this one will be cancelled, and we are only left with n is equal to n greater than v. This is very important. इसका ये मतलब है कि आपके पास इस बेसल फंक्शन के अंदर ये जो समेशन का इंडिसेस है, जो कि n is equal to 0 है, ये n is equal to v होगा। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूं, देखिएगा जरा। So j minus v of x
minus v of x, this will be equal to summation n from v to infinity minus 1 to raise power n divided by n factorial n minus v plus 1. Okay, gamma function of this term into x upon 2 whole power 2n minus v. So I hope आपको स्टूडेंट यहां तक समझ आ गई है. Okay, now let's move on. Now स्टूडेंट हमारे पास ये जो टर्म है j माइनस बी ऑफ एक्स, आपके पास ये जो रिलेशन आया है, इससे आगे हमने क्या करना है जरा देखिएगा. हमारे पास इस समीशन की आपको जो टर्म चाहिए ना, वो n इज इक्वल टू v प्लस 1, मतलब v से बड़ी टर्म चाहिए. ओके, तो इसका यह मतलब है वी हैव टू रिप्लेस लेट n इज इक्वल टू v प्लस s. ओके, n को आपने किससे रिप्लेस करना है? v प्लस s से रिप्लेस करना है. ओके, जरा देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे जो टर्म चाहिए वो इस n इज इक्वल टू v से बड़ी चाहिए ना, तो इस वजह से मैंने v में एक छोटा सा नंबर ऐड कर लिया, और ये जो s होगा मैं यहाँ पे चले लिख भी देता हूं, वेयर s विल बी 0 1 2 3 अप टू so on. यहां पर जहां जहां आपको n नजर आ रहा है उसको आप v प्लस s से रिप्लेस कर दें. सो जरा देखिएगा, j माइनस v ऑफ x, दिस वुड बी इक्वल टू समेशन, यहां पे n को रिप्लेस कर दें v प्लस s से, दिस इज इक्वल टू v. हियर वी हैव माइनस 1 टू रेज पावर v प्लस s डिवाइडेड बाय n को आप रिप्लेस कर दें v प्लस s से, और ये v प्लस s का फैक्टोरियल हो जाएगा. और यहां पर भी गैमा फंक्शन ऑफ v प्लस s माइनस v, सॉरी इट वुड बी माइनस v प्लस 1 एंड x अपॉन 2, यहां पर भी आप n को रिप्लेस कर दें v प्लस s से और माइनस. आप हमारे लिए काम काफी आसान हो गया, इसको जरा देखिएगा. नाउ इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं. दिस वुड बी j माइनस v ऑफ x, दिस इज इक्वल टू समेशन. अब इस v को आप राइट साइड पे लेके जाएं तो s इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहां पे आप माइनस 1 की जो पावर है उसको आप ब्रेक कर लें. दिस वुड बी v एंड हियर वी हैव माइनस 1 टू रेज पावर s डिवाइडेड बाय, ये आपके पास जो v प्लस s है, स्टूडेंट यहाँ पे लिख देता हूं. अगर आपके पास कुछ ऐसे लिखा हो v प्लस s प्लस 1 और इसका गैमा फंक्शन, तो इसे मैं लिख सकता हूं v प्लस s फैक्टोरियल. ओके, इट्स मीन दैट कि आपके पास यहां पर ये जो v प्लस s फैक्टोरियल है, इसको आप गैमा फंक्शन ऑफ v प्लस s प्लस 1 लिख सकते हैं. ओके, मैं यहां पे लिख रहा हूं गैमा फंक्शन ऑफ v प्लस s प्लस 1, और ये आपके पास जो टर्म है v को आप v से कैंसिल कर सकते हैं, एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद गैमा फंक्शन ऑफ s प्लस 1. ओके, एंड यहां पर मैं लिख सकता हूं गैमा फंक्शन ऑफ s प्लस 1, दिस इज इक्वल टू s फैक्टोरियल. ये चलिए मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूं x अपॉन 2, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करें, सो ये 2v हो जाएगा और ये प्लस 2s हो जाएगा, और ये माइनस v, तो आपके पास क्या बचेगा 2s प्लस v. ओके, नाउ इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं. देखिए आपके पास ये जो माइनस 1 टू रेज पावर v है, इसको मैं स्टार्ट में ले आता हूं. Okay, on left hand side we have j minus v of x, and here we have minus 1 to raise power v summation n from 0 to infinity minus 1 to raise power s divided by s plus 1 का जो गैमा फंक्शन है इसको मैं लिख सकता हूं s फैक्टोरियल, और ये साथ वैसे लिख दें गैमा फंक्शन ऑफ v प्लस s प्लस 1, and here we have x by 2 2s plus v. अच्छा, एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है,
देखिए आपके पास जो गैमा फंक्शन की डेफिनेशन है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जे वी ऑफ एक्स समेशन एन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 टू रेज पावर एन फैक्टोरियल एन प्लस वी प्लस 1 और उसका गैमा फंक्शन x बाई 2 टू रेज पावर 2n प्लस वी। अब इसको अगर आप n को रिप्लेस कर दें ना s से, n को आप s से रिप्लेस कर दें तो आपके पास ये वाली टर्म बन जाएगी। ओके, इसको मैं चले यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स में इनक्लोज भी कर देता हूँ। ये वाली टर्म जो है ना, इसमें अगर आप s को n से रिप्लेस कर दें तो वो ऊपर वाला फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है ना बेसिस फंक्शन की, तो इसमें अगर आप s को n से रिप्लेस कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं j माइनस वी ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस 1 टू रेज पावर v, और इस पूरे में अगर आप s को रिप्लेस कर दें, s को आपने रिप्लेस करना है n से, तो बाकी आपके पास जो बचेगा वो बेसिकली बेसिस फंक्शन की डेफिनेशन ही होगी, जे वी ऑफ एक्स होगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने एग्जांपल नंबर 1 को हमने प्रूव कर दिया है। आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 1 थी जिसे हमने प्रूव कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।